Hello students, I welcome all of you in Kines Educare. Today we are learning about practical geometry. This chapter is from your 7th mathematics NCERT. In the previous lecture we learn about the how to draw the parallel line, कैसे construct किया जाता है. तो आज हम देखेंगे construction of triangles. It is better for you to go through this section after recalling ideas on triangles in a particular the chapters on the properties of triangles and congruence of triangle. और हमने पता है कि प्रॉपर्टी क्या होता है, congruence triangle कैसे ड्रॉ किया जाता है, ट्राइंगल के जो भी कंसेप्ट है ऑलरेडी हमें पता है. So you know how to triangles are classified based on the sides or angles and the following important properties concerning the triangle. The exterior angle of a triangle is equal in a measures to the sum of interior opposite angle. जैसे कि आपको डायग्राम यहाँ पर दिख रही है. So angle 3 is equal to क्या होगा, 1 plus 2 होगा. The total measure of three angles of a triangle is 180 degree. दिख रहा है आपको यहाँ पर, yes 180 डिग्री होता है. Sum of the length of any two sides of a triangle is greater than the length of the third side. ये भी रूल हमें ऑलरेडी पता है. And in any right angle triangle, the square of the length of hypotenuse is equal to the sum of the squares of the length of other two sides. जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, ये कौन सा रूल होता है? Correct, we use the Pythagoras theorem. Now, in the chapter on congruence of triangles, we saw that a triangle can be drawn if any one of the following sets of measurements are given. First, three sides. Second, two sides and angle between them. Two angles and the side between them. मतलब ये हो जाएगी S S S, ये हो जाएगा S A S, ये हो जाएगा A S A. एंड द हाइपोटेनियस मतलब आर एच एस यहाँ पर हो जाएगा. सो वी विल नाउ अटेम्प्ट टू यूज दीज आइडियाज टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल्स. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिंग अ ट्रायंगल व्हेन द लेंथ ऑफ इट्स थ्री साइड्स आर नोन. मतलब यहाँ पर हमें थ्री साइड्स यहाँ पर पता है, यहाँ पर तीनों का भी डायमेंशन हमें यहाँ पर पता है. ओके. So in this section we will construct triangles when all the sides are known. अभी हमें सभी sides पता है, ऐसे हम consider करते हैं and हमें triangle construct करना है. ठीक है. So we draw first a rough sketch to given an idea of where the sides are and then begin with drawing any one of the three side lines. See the following example. Example देखिए. Example है construct a triangle ABC given that AB is equal to 5 cm, BC is equal to 6 cm and AC is equal to 7 cm. सोल्यूशन देखिए, फर्स्ट हमें क्या करना है, रफ स्केच यहाँ पर ड्रॉ करनी है. फर्स्ट वी ड्रॉ रफ स्केच विद द गिवन मेजर. दिस विल हेल्प अस एंड डिसाइडिंग हाउ टू प्रोसीड. देखिए स्टूडेंट्स, रफ स्केच ऐसा नहीं कि आपको वैसे ही अप्रोप्राइट ही बनानी है, आप रफ स्केच यहाँ पर बनाए तो एक थोड़ा सा आइडिया आने के लिए. ठीक है. तो यहाँ पर BC 6 सेंटीमीटर दिया है, AC 7 सेंटीमीटर है, AB यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है. तो आपकी जो रफ स्केच यहाँ पर ऐसे बनेगी. आई बात समझ में. नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अभी यहाँ पर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ट्राइंगल. ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC ऑफ अ लेंथ 6 सेंटीमीटर की यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, फ्रॉम B पॉइंट A इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर. सो विथ B एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. B को सेंटर रख के एक आर्क ड्रॉ करिए जो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का हो. नाउ A विल बी द समवेयर ऑन दिस आर्क. Our job is to find where exactly A is. So हम क्या करेंगे, अभी फ्रॉम C से 7 सेंटीमीटर का यहाँ पर आर्क ड्रॉ करेंगे. सो फ्रॉम C पॉइंट A is at the distance of 7 सेंटीमीटर. So with a C as a center, draw an arc of radius 7 centimeter. A will be somewhere on this arc. We will fix it. Okay. देखिए यहाँ पर मुझे मिल जाएगा A point, तो यहाँ पर A point मिल गया. Now what we do? Just connect AB and AC. So A has to be both the arcs drawn. So it has the point intersection of arcs. Mark the point of intersection of arcs A. Join AB and AC. Triangle ABC is now ready. ओके. तो यहाँ पर आपको ट्रायंगल मिल जाएगा आपका. आई बात समझ. देखिए कितना आसान कंस्ट्रक्शन था ये. सो देखिए एक एग्जांपल है, ट्राई करिए इसे. नाउ लेट अस कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल DEF सच दैट DE इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, EF इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड DF इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, DEF को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यहाँ पर पहले EF का रफ स्केच यहाँ पर ड्रॉ करेंगे. EF यहाँ पर है 6 सेंटीमीटर का, देन 7 सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर. तो ये समथिंग यहाँ पर ऐसे ट्रायंगल बनेगा. ठीक है. तो यहाँ पर D कहा, ये 5 है और ये 7 सेंटीमीटर है. तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करिए. कर दिया.
ई यहाँ पर ई पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर एफ पॉइंट हो जाएगा। ई से कंपास लेके यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का आर्क बनाइए, एफ से यहाँ पर 7 सेंटीमीटर का आर्क बनाइए, यहाँ पर डी पॉइंट आ जाएगा, तो आपको ये ट्रायंगल मिल जाएगा। कितना आसान था ना ये भी कंस्ट्रक्शन। यस, तो आपको देखिए स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में मिनिमम 3 और 4 मार्क्स के लिए आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अगर आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हो आपको ये फुल मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। So we observe that triangle DEF exactly coincides with triangle ABC. Note that the triangles have been constructed when their 3 sides are given. Thus, if 3 sides of one triangle are equal to the corresponding 3 sides of another triangle, then the 2 triangles are congruent. This is SSS congruency rule which we have learned in the earlier chapter, जो हमने ऑलरेडी लर्न किया था। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही आज का लेक्चर नंबर 2 हम यहाँ पर एंड करते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने क्या लर्न किया है? आज हमने देखा हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल व्हेन द 3 साइड्स आर गिवन। अगर यहाँ पर 3 साइड्स गिवन हो तो उसे कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। स्टेप 1 हमने देखा था कि रफ स्केच ड्रॉ करनी है, देन उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देन यहाँ पर 2 आर्क यहाँ पर आ जाएंगे, ओके, एंड ट्रायंगल हमें कनेक्ट कर लेना है और ट्रायंगल यहाँ पर बन जाएगा। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट्स आई थिंक आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।